Okay, so we will move forward on that. Let me share my screen. So basically, we have two more classes left with, and as I told earlier, I was thinking to take the last class as a session where there will be a mentor and she will be giving you some details about the professionalism regarding the robotics. Okay, but we will cover it out. Today we will cover the basics that are left for the nodes and the packages, and rest we will be having one day, I mean the 1 hour for the gazebo only, where you will be simulating the robots what we have did till now. Okay, so let's begin with it. So first what we do, as in the last class we have completed the hello world of the ROS, and we have printed the ROS2 on the terminal. But there is one thing that what we require whenever you are making a node, or whenever you are writing a code on the VS code, as we have checked that we have giving a Python code, and then we printed it on the terminal. But that is, until then we are not installing that node, that is only an script, or should I say that is only a Python code. Whenever you are making a node, you have to install that, just like a application or just like any setup, you always install it. Okay, so what we have to do, we have to install the node if we are making any node in the packages. Okay, so first we begin with that. Just come to our workspace, that was ROS2 WS1, I guess it was the workspace. Yeah. So how many folders we were having? We were having build, install, log, and source. So we will. Okay. So we will begin with that. We have the ROS to workspace here. So first thing I want to tell you is that sometime what happened, the terminal shows an error when you run any ROS script. Okay, so sometime it may occur. So what you have to do, you have to source the whenever you are using a terminal. If I'm using this one, or let's say if we are doing this on cd, this one, so what you will do, you will type source. Again, the sourcing the main file, which is the bash file of the terminal. you know when we were using gedit, then there was some code, and that was the main bash file of the terminal. So we are going to source that. We will simply type source dot bash rc. ठीक है. So sometime it will show this. Okay, so what you have to do, the source dot bash rc, if you will do this here, dot source, I guess the name was different, it was like bash rc, if I'm not wrong. uh, Anyone knows what I created the bash rc name? In starting, I have told you that we have to source it on the bash rc. What was the name? Because I have to check it again in the files. आप लोग में से किसी को पता है कि बैश आरसी जो हमने बताया था, तब मैंने उसका नाम क्या दिया था, डॉट रखा था, क्या रखा था? आई have to check. Sir,
ये हम स्लैश से पहले शायद यूज करते थे, डॉट स्लैश बैश हाँ, ऐसे। वो वही मैं पूछ रहा हूँ, मैंने उसका नाम क्या दिया था? डॉट स्लैश था। यस सर, यस। ओके ना, okay, let it be, but I will tell you that what was make the bash file. We will check that. I will check it in the file folder. I have to search for that. No issues. But again, if you are making any ROS code, आपको क्या करना है, जो आपने बैश यहाँ से बनाया उसको आप सोर्स कर लेना। जो एग्जैक्ट क्या नाम होता है वो मैं आपको अभी देखूंगा, फिर मैं आपको बोलूंगा, क्योंकि आपको फिर वो फोल्डर्स में ही देखना पड़ेगा क्या उसका नाम था। ठीक है। वन मोर थिंग, जब भी हमने अभी देखा कि हमने जो हमने बनाया था अपने पैकेजेस के अंदर, लेट्स से हमने लिया था cd टू वर्क स्पेस, वापस से अब हम इसके अंदर जाएंगे, वी आर गोइंग टू सोर्सेज। ठीक है, तो and we are doing ls here. We have my packages, that was the name of the package which we have created. But today what we will do, we will go to the install folder. You can see here there is another folder of install. But whenever you are making a package, you will be going for the source folder, and if you are going to make a node and you want to install that, you have to go to the install folder. So I did it for checking the name of the package which I have created. So again, we are going to the workspace ROS2 underscore ws1. Okay, so again, next moving forward, we will go to the install, and here we are. Now if I will do ls here, you can see there are two things, that setup.bash and the local setup.bash. So we have sourced the setup.bash already in the main file, in the bash rc file, so we will go forward with it. Okay, so in install, what you have to do, you have to check this my package, that was the package created using the package of when we build it using the Qualcomm and the other process which we did for making a package. So after creating a package, you have to come to the install section, and now you have to search for the package. This is our package. Let's come to this my underscore package. Okay, we will do ls here. Okay, so now you the lib, and the second one is share. Okay, so again, where we will go, that is our last destination, the lib. We will go here and we will do ls. You are saying something like this, python 3.10. Okay, and only one thing, that is the our python, which version we are using for the python, that is python 3.0. We will come to our vs code, host to workspace. Here you can see the setup.py. Okay, so this is the whole code of the setup. If you want to install if you want to check about what is in this code, there's nothing. There is all the information which were previously we have seen in the package.xml, that the information related to our license and information related to our python and pytest and the libraries or the copyright and other things. Similarly, when we see in the setup.py file, the same information is there. Now what we will do, we will do some changes here. Okay, so in this setup.py, I'm going to do some changes. Just look at that. Just at the last line, that is completing here, the console scripts this line. Okay, so it is common whenever you are making any node, it will be common for all. If you are making any node, you will see a setup.py folder and you want to install your node
and why installing is required, we will see it further in the upcoming time. We will see why we have to install the node. Okay, so again, after this console scripts line, you have to make sure that whenever you are adding the line, you have to check this line console scripts. Okay, and from here there is a block, and you have to write a line here that is, let's say we gave a name python node equals to, what was our package name? Our package name was my package. Okay, so again, py node my package. And one more thing, that it is not required that you have to paste the same name here. I'm just, for not having any confusion, I have put it the same name. You can change the name here, and whenever you are installing something, you can change the name of your node or change the name of your package when you are installing anything. Okay, so for the not making it confused, we have taken a same name. इसके बाद हमें अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एक और चीज ऐड करनी है, कॉलन मेन। ठीक, आपको इसमें इतना ऐड करना है, आपको लिखना है पाई नोड। अभी हमने ये पाई नोड ही क्यों लिखा, बाकी कुछ और भी तो लिख सकते थे, ये पाई नोड ही क्यों लिखा स्पेसिफिकली, ये अभी हम देखते हैं कि हमने पाई नोड ही लिखा और यहाँ पे लास्ट में ही क्यों लिखा। ठीक, सेटअप में क्यों लिखा, ये तो इसलिए हमने इसमें सेटअप में लिखा क्योंकि सेटअप ही ऐसी वो चीज़ होती है कि हमें भी पता है कि जब हम कोई एप्लीकेशन विंडोज़ में भी इंस्टॉल करते हैं तो वो सब किसके थ्रू होता है, थ्रू सेटअप। ऐसे जब हम नोड को इंस्टॉल करना है तो हमें ऑब्वियसली सेटअप से ही डील करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक लाइन ऐड कर दी, पाई नोड इक्वल्स टू माई पैकेज कॉलन मेन। इसको सेव करते हैं। ठीक है, हम इसको सेव करेंगे। नेक्स्ट, अब हमें इसमें क्या करना होता है कि अब अगर हमने इसको चेंज किया तो एज वी नो कि अगर हम कुछ भी चेंज करने वाले हैं या फिर कुछ ऐसा हमने अपने कोड में या कहीं पे भी कोई चेंज किया तो अब हम उसे बिल्ड करेंगे। क्या करेंगे, अब हमें उसको बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बिल्ड नहीं करेंगे तो वो जो चेंजेस होंगे वो सेव ही नहीं होंगे, आप यही बोल सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स डू दैट। Before beginning to installation process, there was one thing which I have not completed in the last lecture. That was our node hello world underscore node.py, and one someone has pinned that why we are using this hashtag. I guess I haven't told about that. We are telling the code that where the node is located and where to find the python to execute this code. ओके, कि अगर हमें पता करना है कि जो ये हमारा कोड है वो हमें रन किसके थ्रू कराना है, तो वो हम एनवायरनमेंट कौन सा है हमारा, पाइथन का है, या फिर अगर यहाँ पे सी प्लस प्लस आप कर रहे होते तो जहाँ पे आपके लिनक्स में सी प्लस प्लस इंस्टॉल होता आप वो वाली लोकेशन यहाँ पे देते। बट एज वी आर यूजिंग पाइथन तो हमने यहाँ पे एक बस बताने के लिए यहाँ पे लिखा है कि ये पाइथन 3 का इन्वायरमेंट है, बाकी इसका और कोई पर्पस नहीं होता। बट ये रिक्वायर्ड होता है, अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो इनकेस अब जब आप इसको पब्लिश कर रहे होंगे नोट को तब आपको इश्यूज फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको खुद को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि ये जो हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया था या जो भी किया था, ये था एक, इसको हम बोलते हैं मिनिमल कोड। मिनिमल कोड मतलब कि अगर हमें कोई चीज़ काम करानी है, हम दो तरीके से करते थे। अगर हम कोई भी नॉर्मल कोडिंग में भी देखते हैं कि अगर हमें दो नंबर्स को ऐड कराना है, the first thing is that we are taking an input from the user and putting the values in the variables, and the simple line we have added them and we have using the operator। ठीक है, बट हम एक और चीज़ करते हैं, वो क्या होता है, जब हमें अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी होती है या फिर हमें अपना यूजेस का हमें इसके वेरिएशंस बढ़ाने होते हैं, तब हम उसमें एक फंक्शन यूज़ करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ये फंक्शन यूज़ किया, मेन फंक्शन, फिर बाद में हमने मेन को कॉल किया, तो ये हो गया मिनिमल कोड। लेकिन जब आप
को पहले ये पता होगा कि नोड क्या है। नोड एक ऑब्जेक्ट है, और अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दैट इज सबको पता होता है ऊप्स, हम जो पढ़ते हैं डीएसए में भी होते हैं, या फिर हर एक लैंग्वेजेस हम ऊप्स को पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर हम जब हम रॉस में यूज करते हैं, जो कि हमेशा हमें वही यूज करनी होती है, क्योंकि अगर आप हेलो वर्ल्ड प्रिंट करोगे, ठीक है कोई बात नहीं, पर अगर आपको रिपीटेडली हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट करना है, हम यही देखेंगे कि हम अगर रिपीटेडली हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहे हैं, या फिर हम एक मैसेज सेंड कर रहे हैं हेलो वर्ल्ड का थ्रू अ नोड, नोड क्या करता है, इन्फॉर्मेशन शेयर करता है या रिसीव करता है। सिमिलरली अगर हमें हेलो वर्ल्ड को शेयर करना है कहीं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें उप की जरूरत पड़ेगी, बिना उप के हम नहीं कर सकते। मिनिमल कोड अगर हम लिखने चाहेंगे तो वो आप ये समझ लीजिए कि सेम ऐसा हो जाएगा कि जो काम आप 5 मिनट में करना चाहिए था, वो आप उसको करने में ले रहे होंगे मोर देन 30 to 35 मिनट। ठीक है, इसलिए जब भी हम रोज में काम करते हैं तब हम उप पे ही काम करते हैं, हम क्लासेस बनाते हैं। आई होप आपको पाइथन में पता होता है क्लासेस वगैरह क्या होती हैं, वो आपको पाइथन में ही देखना पड़ेगा, इतना कुछ उसमें नहीं है, पर फिर भी हम यहाँ पे भी देखते हैं। अगर हमें यही सेम काम अब हम ऊप से करके देखते हैं, इसी कोड में हम चेंजेस करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं क्लास। ठीक है, क्लास लिखने के बाद हम यहाँ पे एक उसको नाम देते हैं, लेट्स से हमने उसको नाम दिया आई नोड, मैं बना नोड। उसके बाद जो हमारा वो था, हमने अपना ऑब्जेक्ट को कॉल किया। हमारे यहाँ ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट है हमारा नोड। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट है क्लास के अंदर वो हमने फिट किया, वो हो गया नोड। ठीक है, देयर इज एन एरर, हमें यहाँ पे कॉलन भी लगाना है। ठीक, अब हमने ये एक बार बता दिया, हमने ये डिफाइन कर दिया। अब हमें जो इनिट था, जो हमने ये हमारी जो थी पाइथन की लाइब्रेरी, आरसीएल लाइब्रेरी, आरसीएल लाइब्रेरी का आई गेस किसी ने फिर बाद मेरे से पूछा था कि ये कैसी लाइब्रेरी होती है। देखिए पाइथन में हम जो लाइब्रेरीज यूज करते हैं रॉस के लिए, वो दो होती हैं। एक होती है आरसीएल सी प्लस प्लस। आरसीएल एक कंप्लीट एक लाइब्रेरी हो गई, इसके दो वर्जन है, आरसीएल सी प्लस प्लस और आरसीएल पी वाई। पाइथन के लिए आप आरसीएल पी वाई का यूज करेंगे जब भी आप रॉस पे काम कर रहे होंगे। अगर आप सी प्लस प्लस पे करेंगे तब आरसीएल सी प्लस प्लस की एक लाइब्रेरी होती है, आप वो यूज करेंगे। ठीक है, तो उसी लाइब्रेरी के अंदर एक फंक्शन ही आप बोलिए अभी के लिए, क्लास में हम एक बनाते हैं हमने एक बनाया इन इट। ठीक है, अब इसका जो सिंटेक्स होता है जब भी हम इसका बनाते हैं तो वो होता है सेल्फ, और लास्ट में आपको क्या करना है, इसको डिफाइन कर देना है जो भी आपने इसको बनाया है या फिर ये। ठीक है, क्लास था, ठीक, इतना कर लिया। आई विल गिव मोर स्पेस, आई होप इन इट वेट मिनट। ठीक है, हम वापस करते हैं, इसमें कुछ एरर आया। डिफाइन इज डिफाइन इन इट। ठीक है, at the last we will write self and again a column। ठीक, इतना हो गया। इतना करने के बाद यहाँ पे एक फंक्शन होता है सुपर, जो आप कॉल करेंगे। ये हम किसके लिए कर रहे हैं, अभी हम फर्स्ट जो हमारा बना रहे हैं, तो हम इसका नाम रखते हैं, जो हमने इनिट बनाया जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, जो नोड था वहाँ पे हमने लिखा था, नोड को हमने एक नाम दिया था, वो था पाई टेस्ट, है ना। तो इस बार हम इसको सेम नाम भी दे सकते हैं, डिफरेंट नाम भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ उसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आप एक नोड पे काम करें तो उसको चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बट अगेन अभी हम फिलहाल सेम नेम लेके ही चलते हैं, और वापस से हम कॉल करेंगे इनिट को। इनिट के बाद अब हम यहाँ पे अपना जो इसका सिंटेक्स होता है, हम जो लिखते हैं, फिर आपको यहाँ पे कॉलम में नेम देना होता है, जो हमारा नोड का नेम होता है पाई टेस्ट, ऐसे हमने इसको ये नाम दिया। फिर जो और वन मोर थिंग, जब भी आप इसमें क्लास बनाएंगे नोड ऑब्जेक्ट के साथ, तो आप जो भी कुछ इसमें करेंगे वो आप
थ्रू सेल्फ फंक्शन ही कर रहे होंगे, ठीक है। सेल्फ के ही बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, सेल्फ डॉट गेट, सेल्फ डॉट आउट एंड सिमिलर टू दैट। हमें यहाँ पे जो काम है, अब अगर हमें कुछ प्रिंट कराना है, फिर हम इसमें क्या यूज करते हैं, सेल्फ डॉट गेट, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ, फिर हम यहाँ पे डॉट GET, और गेट में भी अब इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। आप इस देखोगे, इसमें क्लॉक होता है, नेम होता है, नेम स्पेस होता है, नोड नेम्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं। ये में ही आप पैरामीटर्स बनाते हो, रॉस में ही आप अ, आपको लॉगर भी चाहिए होता है, रॉस में आप जो अभी हम बना रहे हैं वो नोड्स बनाने हैं, तो नोड के ही आप नेम दोगे, फिर उसके ही बहुत सारे वेरिएशंस आपको मिलेंगे, क्योंकि उनके अलग अलग यूजेस होते हैं। हम अभी जो देख पाएंगे आज, वो हम नोड या पैकेजेस का ही देख पाएंगे, और हम एक ब्रीफ देखेंगे लास्ट में कि ये जो नोड और पैकेजेस के बाद और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, आरवेज होता है, जो भी होता है वो हम एक बार देखते हैं, अभी इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। बट हमें अगर कुछ प्रिंट कराना है, फिर हमें किसका यूज होगा, गेट लॉगर का, ठीक है। वी विल यूज गेट लॉगर, ठीक। इसके बाद हमें जो इंफॉर्मेशन प्रिंट करानी है या फिर जो मैसेज प्रिंट कराना है, वो हम यहाँ लिखेंगे डॉट इन्फो। इन्फो लिखने के बाद सिमिलरली ये जो पूरा होता है लाइन, जो नोड डॉट गेट डॉट लॉगर, जो मिनिमल कोडिंग में हम करते हैं, वो चेंज हो जाता है सेल्फ फंक्शन से, किसमें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, क्योंकि अब हम यहाँ डायरेक्ट किससे डील कर रहे होते हैं, जो हमने हमारे पास ऑब्जेक्ट है हमारा नोड, उससे, ठीक है। क्योंकि हम जो भी ये सब कर रहे हैं किस क्लास के अंडर कर रहे हैं, माई नोड नाम की एक क्लास है जो ओरिएंटेड किससे, ऑब्जेक्ट से, नोड नाम के एक ऑब्जेक्ट्स पे ओरिएंटेड है, ठीक है। अब हम लेट यहाँ पे सेम ही मैसेज लिखते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं हम, Ctrl+X। अभी ये भी हम चेंज नहीं करेंगे, अब ये रिक्वायर्ड नहीं है, ये सेम काम जो होगा वो ये भी वही कर रहा होगा, ठीक है। आपने इतना कर लिया, बस इसके बाद हमें इसमें कुछ ऐड नहीं करना, कुछ यहाँ पे रेड वेड नहीं आ रहा, हम इसको सेव करेंगे, Ctrl+S। अब अगेन, अब हमें इसको क्या करना है, बिल्ड करना है। बिल्ड किसको करना है, जो भी हमने ये बनाया अभी उसको हम बिल्ड करेंगे। बट उससे पहले आप एक बार ये कोड जो है आपका पूरा इतना तक आप यहाँ पे आइए, ठीक है। आई विल कॉपी पेस्ट, इसमें जो स्पेसेस और टैब्स हैं उनका ध्यान रखिएगा। अगर कोई कलर नहीं आ रहा है, दैट मीन आपने उसमें कुछ गलती की है, ठीक है। एक बार आप यहाँ तक इसको कंप्लीट करिए। आप अपने VS कोड में जाइए, VS कोड में जाने के बाद जो आपने नोड बनाया होगा कल, सॉरी इन द लास्ट क्लास, उसमें चेंज करिए। जो हमारा मेन कोड था डिफाइन में हमने लिखा था मिनिमल कोडिंग में, उसको हम ऊप में ऐसे लिखते हैं। आप यहाँ तक इतना करिए, ठीक है, फिर हम आगे फॉरवर्ड होते हैं। एक बार ये करने के बाद कोई बोल दीजिएगा, जिससे कि मुझे पता पड़ेगा हो गया उतना, क्योंकि ये आपको साथ ही साथ करना होगा, क्योंकि अगर इसमें एरर आएगा फिर आप उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। हो गया, हो गया आप लोगों को इतना यहाँ तक आपने किया।
किया किसी ने यहाँ तक? ताहा, वंशिका, तुफैल, हार्दिक, आयुष। एम आई ऑडिबल? और आप लोग बस सुन रहे हैं, कोई साथ ही साथ कर रहे हैं? देन आई विल आस्क यू और आई विल कंप्लीट इट बाय माय ओन। चलिए ठीक है, कोई नहीं। देखिए, तो एक बार जब आप ये कोड लिख लेते हैं, अगेन मैंने बोला कि अब आप कोई भी चेंजेस करते हैं तो आपको इसे बिल्ड करना पड़ता है। टर्मिनल में हम कैसे बिल्ड करते हैं, हम कॉलकॉन जो हमने इंस्टॉल किया था उसका यूज करते हैं बिल्ड करने के लिए। तो हमारा वर्क स्पेस क्या है, वापस हम अपने वर्क स्पेस पे आएंगे, CD, हम अपने होम पे आ गए। हमारा जो वर्क स्पेस था ROS2, हम जो अपने वर्क स्पेस है उसको एक्सेस करने के लिए सेम कमांड। अब पहला ऑप्शन था जो हम हमेशा करते हैं कि हम पूरे के पूरे वर्क स्पेस को ही बिल्ड करते हैं, पर हमने एक और चीज़ देखा था जब हम कॉलकॉन को देख रहे थे कि हम स्पेसिफिकली अपने जो भी हमने कुछ बनाया है एक पैकेज, हम उसको भी बिल्ड कर सकते हैं। तो हमने क्या बनाया है, हमारे जो पैकेज का नाम था वो था माई पैकेज। तो हम सेलेक्टिवली जो हमारे रॉस वर्क स्पेस के अंडर पैकेजेस हैं उनमें अगर हमें इसको ही बिल्ड करना है तो हम इसी को ही बिल्ड करेंगे, जिससे कि हमारा टाइम भी सेव होगा, पूरा का पूरा वर्क स्पेस बिल्ड नहीं होगा। ठीक है, तो हम आते हैं यहाँ पे अपने कॉलकॉन पे, सिमिलर सेम सिंटेक्स, कोई चेंज नहीं है। कॉलकॉन बिल्ड, ये तो हम सिंपल अगर यहाँ पे लिख के ही अगर एंटर हिट करेंगे पूरा का वर्क स्पेस जो है हमारा वो बिल्ड हो जाएगा। बट हम उतना नहीं करेंगे, जो हमारा पैकेजेस हैं उनमें से हम एक पैकेज को सेलेक्ट करेंगे। हमने यहाँ लिखा पैकेजेस, सेलेक्ट वन, उस पैकेज का फिर यहाँ पे नाम दे देंगे। हमारे पैकेजेस का नाम है माय पैकेज। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे, इट विल टेक 4 to 5 seconds एंड एट द लास्ट हमें यहाँ पे आ गया कि वन पैकेज हैड TDR आउटपुट माय पैकेज। ठीक है, हमारा जो पैकेज था वो बिल्ड हो गया। ठीक है, आई होप यहाँ तक अभी क्लियर हुआ है यहाँ पे कि हम कैसे बिल्ड करते हैं, इतना तो एटलीस्ट आ ही गया होगा सबको। ठीक, अब एक और चीज इसमें आती है कि अब चलिए पहले हम इसी को ही करके देख लेते हैं। ठीक है, तो व्हाट वी विल डू, हम जो हमने अपना पैकेज बनाया है उसको हम क्या करेंगे, अब रन करेंगे। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे ROS2। ठीक है, और फिर जो हमारे प्रैक्टिस था उसका नाम लिखेंगे ROS2। मैंने आपको बताया था जब भी आपको ROS का कोई काम होगा आप ROS2 लिखेंगे। और हमारी जो पैकेज का नाम था वो हमने क्या रखा था, या उससे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं। फर्स्ट लेट्स कम टू अ पैकेज, कि हमने जहाँ पे पैकेज बनाया था वो था ROS2 वर्क स्पेस। LS करेंगे, हमने कहाँ पे बनाया था, ये इंस्टॉल में जाके सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पे CD इंस्टॉल, हम इंस्टॉल में आए, इंस्टॉल के बाद भी हम वापस से LS करेंगे। तो हमारे पैकेज का नाम था यहाँ पे माई पैकेज। ठीक है, CD माई अंडरस्कोर पैकेज। ये सेम टास्क है, ये जो आपको हमेशा एक फॉलो करना पड़ता है कि आप जहाँ पे ही आप सेव करते हैं वो आपको लोकेशन ट्रैक करनी पड़ती है उसके अंदर के फोल्डर्स को चेक करने के लिए, इंस्टेड ऑफ दैट। वरना मैं यहाँ पे VS कोड में भी सारे के सारे देख सकता हूँ, बट हम जो करते हैं वो हम टर्मिनल से ही एक्सेस करते हैं। ठीक है, हम आ गए माई पैकेज पे और वापस से I write it wrong, it is spelling mistake। PACKH। ठीक है, हम आ गए अपने माई पैकेज पे। अब हम यहाँ LS करेंगे। हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, लिब और शेयर। हमें किससे काम है, लिब से, क्योंकि हमारे जो भी कोड शेयर होते हैं वो सॉरी सेव होते हैं वो किस में होते हैं, नोड के लिब में। ठीक है, अब आप देखोगे जब मैंने यहाँ पे किया था तब आपको लास्ट में दिखा था पाइथन 3.10, है ना। आपको यहाँ पे ये माई पैकेज करके कुछ नहीं आया था। ठीक है, क्योंकि सेम हम पहले हमने चेक किया था लिब में आके, तब यहाँ पे था सिर्फ पाइथन का वर्जन, माई पैकेज नहीं था। ये किस लिए आया, क्योंकि हमने यहाँ पे सेटअप में जो माई पैकेज था वो हमने एक नोड यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। सेटअप में हमने अपने नोड को फिक्स कर दिया, इससे कि अब हम
को इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर जो भी हमारा मेन सेटअप होगा कोड का, अब ये हमारा जो नोड था, ऐसे हम उस नोड को अपने जो मेन सेटअप कोड होता है उसमें फिक्स करते हैं। आपका जो भी नोड का नाम होगा वो आप इसमें एंटर करेंगे, कहाँ पे आके, लिब के अंदर आके आपको यहाँ पे कोड दिखेगा setup.py। जो setup.py कोड होता है उसमें आप ये चेंज करेंगे, जो भी आपका नोड का नाम है वो आप लिख के उसको मेन से फंक्शन से एक्सेस कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इतना हमें करना पड़ता है क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर जो हमारा नोड होगा वो एक सेपरेट नोड होगा, वो पूरे सेटअप के साथ कनेक्टेड नहीं हो पाएगा। अगर दो नोड कम्युनिकेट करेंगे तो तभी हो सकता है जब वो सेटअप से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इतना होने के बाद अब हमें क्या करना है कि लेट्स से हम टर्मिनेटर पे आते हैं। ठीक है, और व्हाट वी विल डू, सॉरी, ओके, सो सॉरी। चलिए, तो अब हमने पता था हमें कि हमें अगर कुछ भी करना है, अगर रॉस में काम, तो हमें उसमें पहले मेंशन करना पड़ेगा रॉस 2, और फिर हमें अब क्या करना है, रन करके देखना है। हम यहाँ लिखेंगे रॉस 2 रन, पैकेज का नाम लिखेंगे, क्योंकि अगर कोई नोड हमें रन कराना है तो पहले बताना पड़ेगा कि वो पैकेज कौन से के अंडर है। ठीक है, हमने यहाँ लिखा माई पैकेज, हमारे पैकेज का नाम है, और अब हम लिखेंगे हमारे नोड का नाम। ठीक है, हमने अपने नोड का एक नाम दिया था, आपको याद हो, हमने यहाँ लिखा था पाई नोड। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे P5, उसके बाद हम लिखेंगे पाई। देखिए, ये इसलिए आता है, मैं अभी बोल रहा था कि अगर आपके टर्मिनल को नहीं पता होगा बैश फाइल कहाँ पे है, या फिर जो कल हमने देख रहे थे कि हम सोर्स नहीं करते हैं, तो टर्मिनल हमेशा यही बोलेगा कि माई पैकेज नॉट फाउंड। ठीक है, बट एज वो फाइल का मैं भूल गया, उसका क्या हमने नाम रखा था, चेक करूंगा। तो आप जब भी टर्मिनल पे पहले ये वाली कमांड रन करने से पहले, ठीक है, ये वाली कमांड आपको रन करनी है, जो आप नोड बनाएंगे उसका नाम एंटर करके आप एक बार ये कमांड रन करेंगे तो आपका जो नोड होगा वो रन होगा, बट उससे पहले आपको सोर्स करनी पड़ेगी जो हमारी मेन फाइल होगी वो। चलिए पहले हम वही कर लेते हैं। ठीक है, और एक और चीज होती है कि अगर आप जैसे कि हमने जो अभी देख रहे थे कि हेलो वर्ल्ड नोड डॉट पी वाई होती है, हम नोड का इसमें एक और चीज देख लेते हैं, फिर ये हम नोड खत्म ही करेंगे, क्योंकि उससे बाद में बहुत और भी चीजें एक दो हैं जो देखनी होती हैं। ठीक है, एक और हम इसमें एक फंक्शन ऐड कर देते हैं। ठीक, डिफाइन। अब लेट से हमने इसमें एक टाइमर ऐड करना है। अगर हम इसमें एक टाइमर ऐड करना चाह रहे हैं कि अगर हम जो प्रिंट कर रहे हैं वो टाइम के साथ प्रिंट हो, तो हम इसमें एक टाइमर ऐड करते हैं, और इसका लिखते हैं हम कॉल बैक। ठीक है, हमने टाइमर कॉल बैक नाम का एक हम फंक्शन बनाते हैं, किसके अंदर, सेल्फ के अंदर। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वो है सेल्फ। पहले हमारा क्या था, इसमें जो क्लास हमारी वो थी माई नोड ऑब्जेक्ट के अंदर, और फिर हम यहाँ पे जो भी कुछ होगा वो डिफाइन करेंगे फंक्शन थ्रू सेल्फ ही होगा, क्योंकि अगर हम सेल्फ के थ्रू नहीं करेंगे फिर यही एक रीजन होता है कि हम पाइथन से कोई भी नोड क्यों नहीं बनाते। अगर हमें कोई मैसेज प्रिंट कराना है तो आपको पाइथन में नहीं मिलेगा, ये रॉस 2 का ही टूल है, इसी लाइब्रेरी के अंदर ही मिलेगा। ठीक है, आरसीएल पाइक्लाब और किसी लाइब्रेरी में आप ये यूज नहीं कर सकते। ठीक है, सेल्फ में अगेन जैसे हमने यहाँ पे यूज किया था सेल्फ डॉट गेट लॉगर, जब हमें कुछ प्रिंट करना होता है, ऐसे ही जब आपको टाइम के साथ कुछ करना होता है या फिर आपको कुछ काउंट करना होता है, अगर हमारा जो भी हमारा टाइम होगा हम उसे ऑब्वियसली काउंट करेंगे, तो हम यहाँ पे काउंटर ऐड करते हैं, काउंटर। अब वो काउंटर क्या करेगा, वो जो भी आप
इसमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा होगा, लेट्स से हेलो वर्ल्ड एक बार प्रिंट हुआ, ठीक है। दूसरी बार अगर वो हेलो वर्ल्ड सेंड करेगा तो वो सेंड करेगा हेलो वर्ल्ड 2, हेलो वर्ल्ड ऑफ रॉस 2, 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। तो ये कैसे होता है, ये थ्रू होता है काउंटर के। काउंटर में अब सिमिलर टू दैट हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस इक्वल्स टू 1। तो आपको पता है इसका यूज हम कब करते हैं, जब हमें उसकी वैल्यू को चेंज करना होता है 1 से, यानी कि हर बार जब ये चलेगा तब इसकी वैल्यू किससे चेंज हो जाएगी, 1 से, यानी 1 ऐड होता जाएगा, ठीक। अब वो हमारे बाकी का जो भी है वो सेम ही रहेगा कि सेल्फ, फिर जो डॉट गेट, गेट में भी कौन सा, गेट में हम यूज करेंगे लॉगर, एट अंडरस्कोर लॉगर। गेट लॉगर का यूज करते हैं हम जब हमें कुछ प्रिंट करना होता है या फिर कोई इंफॉर्मेशन हमें है शेयर करनी होती है बार बार, या फिर कोई भी अगर आपको कोई टेक्स्ट सेंड करना है अपने रोबोट को तब आप यूज करेंगे गेट लॉगर का, ठीक है। इंफॉर्मेशन डॉट इन्फो, और अब हम इन्फो का जो, आप देखिए जब इसमें क्या होता है, जैसे हम वहाँ यूज करते हैं ना प्रिंट, प्रिंट हेलो वर्ल्ड ऑफ रॉस 2, तब वो उसमें प्रिंट हो जाती है। लेकिन नोड क्या करता है, नोड इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, या फिर नोड इन्फॉर्मेशन के साथ ही जो कुछ करता है उसका मैसेजेस को फॉरवर्ड करना या रिसीव करना उसका काम होता है। इसलिए हम यहाँ पे जो यूज करते हैं, आप ऐसे याद रख सकते हैं, प्रिंट की बजाय आप इन्फो का यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई टेक्स्ट या डिस्प्ले नहीं हो रहा होता है, यहाँ पे रियल टाइम में प्रिंट हो रहा होता है या फिर रियल टाइम में ही वो रिसीव हो रहा होता है, इसलिए हम उसे इन्फो करके कॉल करते हैं, इन्फो ही हम उसे बुलाते हैं, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे इन्फो, और अब जो हमारा ये था मेन मैसेज, चलिए हम यहाँ से उठा देते हैं, हेलो वर्ल्ड ऑफ रॉस 2, हमें इसके साथ में क्या चाहिए, हमें इसके साथ में टाइमर चाहिए कि काउंट भी इसके साथ आए। आई वांट कि कोई इसको साथ ही साथ रन करता जाए, अगर नहीं कर रहा है तो फिर बाद में करिएगा, ठीक है। इतना तो हमारा यहाँ तक सेम हो गया कि अगर हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी तो इतना हो जाता, पर हमने अभी ये यहाँ पे एक और फंक्शन बनाया सेल्फ डॉट काउंटर करके। ये क्या करेगा कि हमारा जो काउंट होगा +1 एक एक करके बढ़ाता जाएगा, पर वो काउंट को हमें प्रिंट भी तो करना है, वो हमें दिखेगा कैसे, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन अगर हम सेंड कर रहे हैं तो हमें इन्फॉर्मेशन जो हमने ब्लॉक बनाया उसमें ऐड भी करना पड़ेगा। तो इसका एक जो सिंटेक्स होता है वो क्या होता है कि हम यहाँ पे एक नया वो लेते हैं वेरिएबल ही, मान लीजिए str का हम यूज करते हैं, अगेन सेल्फ का ही, सेल्फ में वापस से काउंटर, ठीक है, जो हमने यहाँ बनाया, यानी कि ये जो सेल्फ डॉट काउंटर वेरिएबल था इसका एक जो +1 इसमें होता जा रहा था वो अब इसके साथ में ऐड होता जाएगा, यहाँ पे एक प्लस भी आता है, ठीक है। ये मैं अगेन वापस से पूरा शेयर कर देता हूँ। ये आप अपने जो आपने वो बनाया था नोड, आप उसमें ये कॉपी पेस्ट करेंगे। तो अब जब आप ये नोड आपको रन करना होगा या फिर जब ये नोड एक्सेस करेंगे तब इसमें जो इन्फॉर्मेशन ये सेंड कर रहा होगा वो होगा हेलो वर्ल्ड ऑफ रॉस 2। जब आपने स्टार्ट में मैं इंस्टॉल करा रहा था, जब हम कर रहे थे, तब आपने देखा होगा कि जो पैकेजेस थे वो एक बोल रहा था लिसनर, एक बोल रहा था कि आई एम रिसीविंग, एक बोल रहा था आई एम ट्रांसमिटिंग, दो थे उसमें, ट्रांसमिटर और रिसीवर। तो अब ये वाला जो नोड हमने बना लिया, अब ये वाले नोड क्या काम आएगा कि जो हमारा हेलो वर्ल्ड ऑफ रॉस 2 है वो बार बार ये इसमें डेटा सेंड करता जाएगा, ठीक है। कितना हो गया, तो चलिए आगे देखते हैं इसमें। ठीक है, अब आप में से किसी ने गजीबो इंस्टॉल किया है अभी, किसी के पीसी में है गजीबो? अगर किसी ने किया हो तो मैं पहले भी बताया था कि आपको कुछ नहीं करना है, अगर गजीबो एक बार इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पे गजीबो हिट करेंगे, टर्मिनल पे सिर्फ गजीबो ही लिखना है तो आपको ऐसा करके टर्मिनल आ जाएगा। आपको अगर इसके अलावा कुछ और आ रहा हो या फिर कुछ इश्यू हो जो डॉक्यूमेंटेशन आपने फॉलो किया था तो आप मुझे आज ही बता दीजिएगा, क्योंकि फिर कल हम इस पे
कोई एक इन्वायरमेंट डाल के और कुछ सिमुलेट करके देखेंगे, ठीक है? इतना अगर आप इसके अलावा और कुछ आ रहा हो आपके वाले में तो ये एक बेसिक इन्वायरमेंट आ जाता है। अगर आपको कोई मॉडल्स क्या होते हैं, जैसे कि ग्राउंड प्लेन का भी मॉडल चल रहा है, अगर हम इसमें मॉडल्स को ऐड कैसे करते हैं कि क्योंकि आप यहाँ पे कोई भी मॉडल डाल सकते हो। अगर एक सिंपल ग्राउंड प्लेन चाहिए जिसमें आपको एक्सेस दिखे तब आप ये डाल सकते हो, ठीक है? और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप लेयर्स को एक्सेस कर सकते हो, आपको कुछ अपना अलग से इंसर्ट करना हो, आपने डाउनलोड किया हो वो भी आप कर सकते हो। ये लाइट है, आप देखिए ये भी देखिए, तो हर बार इसमें कुछ ना कुछ आप अगर कुछ भी ऐड करना है तो वो आपको या तो मॉडल में सेव करना पड़ेगा या फिर आपको अलग से वो इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? ये आप देख लीजिएगा, अगर इसके अलावा और कुछ आपको आ रहा हो तो आप मुझे आज ही बता दीजिएगा, क्योंकि कल फिर हम डायरेक्ट इस पे कुछ सिमुलेट करके देखेंगे, ठीक है? और ये तो एक कॉमन होते हैं कि अगर आपको कहीं पे कुछ भी ऐड करना है, लेट्स से आपको कहीं लाइट ऐड करनी है तो आप यहाँ से ऐसे पिक करके स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है? तो ये तो एक बेसिक होते हैं जो सब में होता है। अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट चाहिए तो वो आप यहाँ से उठा सकते हैं और डायरेक्ट हिट करके डाल सकते हैं। ये हमें कभी-कभी रिक्वायर्ड हो जाते हैं, जैसे कि अगर हमें ऑब्स्टिकल अवॉइडिंग रोबोट बनाना है तो हम यहाँ से सीधा ऑब्स्टिकल उठा सकते हैं, ठीक है? और इसमें एक और फीचर होता है कि आप इसमें व्यू भी चेंज कर सकते हैं इधर से। अगर आप लोगों ने कर लिया इंस्टॉल तो आप ये चीज़ें एक्सप्लोर करके रख लीजिएगा, क्योंकि कल फिर अगर मैं ये वापस से बताऊँगा तो टाइम जाएगा, ठीक है? ऐसे आप अगर आपको व्यू चेंज करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। तो और ये होता है सिंपल कॉपी पेस्ट अगर कुछ करना है तो तब, और अगर आपकी कोई फ़ाइल है और आपने कोई वर्ड बनाया है तो आप इसको सेव कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है? क्लोन भी कर सकते हो, ठीक? ये होता है जो हमारा वही कैमरा कि अगर हमें किस फेस में रखना है, पर्सपेक्टिव व्यू में, ऑर्थोग्राफिक में, ऑर्बिट में, या फिर अलग-अलग इसमें फीचर्स होते हैं। व्यू ये आपके बहुत सारे व्यू होते हैं बट जनरली हम इसी पे ही काम करते हैं। अब अगर आपने कुछ ऐसा बनाया तो आप इसमें स्केलेटन पे भी सेट कर सकते हैं, लिंक फ्रेम भी हो सकते हैं, बट वो आपके मॉडल में प्रेज़ेंट होना चाहिए तभी वो वहाँ पे दिखेगा। ठीक है? और क्या है इसमें, और तो इतना कुछ ख़ास नहीं है। बाकी ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारी किसकी, कि जैसे कि ग्राउंड प्लेन है, ग्राउंड प्लेन की ये हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिर हमारे अलग-अलग ऐसे यूनिट स्फीयर है, हमने ये ऐड कर दिया तो ये भी देखिए आप मॉडल में एक चीज़ हमारी क्या ऐड हो गई, यूनिट स्फीयर। ऐसे ही आप कुछ भी, आप अगर ड्रोन होता है तो ड्रोन का भी एक मॉडल होता है, वो आपको कोड गिटहब पे मिल जाता है, कहीं न कहीं मिल ही जाता है। तो आप यहाँ से वो इंसर्ट कर सकते हैं और आप उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, ये एक हमारा बेसिक इंटरफ़ेस जैसा दिखता है, वो ये है। कल अब हम इस पे कोई मॉडल रन करके देखेंगे। तो चलिए वापस आते हैं, आई होप आपने यहाँ तक का किया होगा कि आप एक नोड को अगर आपको पब्लिश कराना है कुछ तो आप कंटिन्यूअसली कैसे पब्लिश कराएँगे, ठीक है? ठीक। इसमें एक और चीज़ होती है, आई विल मेंशन आउट आज ही, कि आपने अगर कोई नोड बनाया और फिर आपको चेक करना है कि वो नोड सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे हम यूज़ करते हैं आरविज़ का, ठीक है? और वो क्यों हम यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको वेरीफ़ाई करना होता है कि आपको एक नोड बनाया तो वो काम दिखेगा कि नहीं। अगर आपको उसका ग्राफ चाहिए तो आप क्या यूज़ करते हो उसके लिए, RQ2 RQT स्लैश ग्राफ करके हमारे पास एक कमांड होती है। उसका हम यूज़ करते हैं किसके लिए, कि अगर हमें कोई भी नोड हमने बनाया तो वो दिखता कैसे। चलिए हम एक बार करके देख लेते हैं। लेट्स से हमने एक अपना टर्मिनल ओपन किया और हाँ, अगेन ये चल रहा है तो हम इसको टर्मिनेट करेंगे पहले यहाँ पे CT। हम यहाँ पे सिंपल 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है हमारे पास RQT, ठीक है? अब पहले हम देखते हैं RQT, हम यहाँ सिंपल राइट करते हैं RQT। देखिए, तो आपके पास एक कुछ ऐसा-ऐसा बन के आ जाएगा। आपको यहाँ पे करना क्या है, प्लगइन्स होते हैं, प्लगइन्स में भी आपको जो जितनी भी ये चीज़ें आपको दिख रही हैं, ये सारी हम रॉस में कर सकते हैं। टॉपिक्स भी रॉस में होते हैं, विज़ुअलाइज़ेशन भी रॉस में होते हैं। ये अगर आप आगे रॉस को एक्सप्लोर करेंगे तब आपको पता पड़ेगा। ठीक, तो अगर इसमें कोई आपको चेक करना है तो वो आप किस पे चेक करेंगे, RQT पे, ठीक है?
और लेट्स अगर इसमें मैं कुछ तो ठीक है, तो इसमें बहुत सारे आपके पास प्लगइन्स में आप जाके आप इसमें विजुअलाइजेशन जो होता है वो आप नोड होंगे, आपको इमेज भी या फिर प्लॉट करके आप अलग अलग इन्फॉर्मेशन को प्लॉट करना है तो आप वो यहाँ से ही प्लॉट करेंगे। आपको कुछ भी आपको अगर डेटा प्लॉट करना है जैसे ये मैट प्लॉट की तरह ही होता है तो वो आरक्यूटी की तरह आरक्यूटी पे ही होगा। और सबसे पहले अगर आपको चेक करना है सी डी, हम यहाँ चेक करेंगे लॉस टू, देखिए तो हमारे पास जो नोड हम अगर हमें चेक करना है कि हमारे जो पीसी है उसमें अगर नोड हैं कितने हमने रॉस में बनाए हैं तो आप उसको यहाँ से चेक करेंगे। आपके पास अभी जो नोड अवेलेबल है पीसी पे जो हमने अभी क्रिएट किया है वो आरक्यूटी जीयूआई का है। ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये यही है। तो इससे क्या पता पड़ता है कि जो ये आरक्यूटी होता है ये इनबिल्ट एक नोड है। अगर आपको देखना है कि आपने जो नोड क्रिएट करे हैं वो कितने हैं तो वो यहाँ से पता पड़ता है। अगर मैं इसको यहाँ से टर्मिनेट कर दूंगा तो यहाँ पे शो नहीं करेगा, यानी कि जो आरक्यूटी होता है वो एक नोड होता है। अगर आप इसको ओपन करने के बाद इसको लिस्ट करेंगे नोड्स को तो आपको यहाँ पे ये दिख जाएगा। ठीक है, एक ये हो गया। चलिए और देखते हैं इसमें कि लेट्स से आपको ग्राफ करना है, फिर इसी का ही एक अल्टरनेट वर्जन होता है। हम इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे RQT सेम एज प्रीवियस वन अंडरस्कोर, हमें यहाँ लिखना चाहिए RAPH ग्राफ। आरक्यूटी ग्राफ में क्या होता है कि अगर यहाँ पे कोई नोड रन हो रहा होता तब आपको यहाँ पे एक नोड दिख जाता, उस नोड का नाम आपको यहाँ दिखता और वो नोड यहाँ पे एक दिख जाता कि हाँ ये नोड आपको जैसे बताओ यहाँ पे डॉट्स आते हैं ना जैसे कोई भी, तो वैसे ही यहाँ पे नाम के साथ डॉट आ जाते हैं। यहाँ पे अगर आप 5 नोड आपने बनाए होंगे वो पांचों के 5 नोड रन हो रहे होंगे एक टाइम पे, तो आपको 5 नोड यहाँ पे रन होते हुए दिखेंगे, 1 2 3 4 ऐसा 5 आपको यहाँ पे जो भी उनके नाम होंगे, लेट्स से इनके नाम है ABCD, तो ABCD 3 सर्कल्स आपको यहाँ पे बन के पता पड़ जाएंगे। इस ये हम कब यूज करते हैं? जब हम कोई चीज इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे होते हैं, रिसीव कर रहे होते हैं, तब हम अगर हमें चेक करना हो कि हम कौन से नोड काम कर रहे हैं तो हम आरक्यूटी ग्राफ का यूज करते हैं। ठीक है, और आई होप इसमें किसी को कुछ पूछना है। आर यू गाइस फॉलोइंग? हेलो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद अब इसमें नोट्स में और पैकेजेस में तो फिर बाद में यही है कि डिपेंड्स ऑन योर क्रिएटिविटी, आपको नोट्स बनाने आ गए, पाइथन का कोड करना आ गया, वो मैं आपको पता लास्ट मैंने बोला था लास्ट क्लास में बताऊंगा कि आपको अगर नोट कुछ इन्फॉर्मेशन जो टिपिकल हम बनाते हैं नोट के, अगर कोई ड्राइवर का नोट बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, अगर आप कोई कैमरा का नोट बनाना है वो कैसे बनाएंगे, वो आपको आफ्टर दिस सेशंस आपको अगर कंटिन्यू करना है रॉस में तो वो आप एक बार सीख लेंगे, फिर आपको उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अराउंड आपको उसमें लगता है 1 to 2 मंथ्स के एक बार आप उस पर हैंड्स ऑन कर लेंगे नोट्स बनाने में, तब ही आप कोई एक नोड आप क्रिएट कर पाएंगे खुद से, वरना कॉपी पेस्ट करके आप गूगल से ट्राई कर सकते हैं अगर पहली बार में करना है तो, कि आप सिंपल सर्च करेंगे किसी भी टाइप का नोड, आप उसका कोड कॉपी करिए, फिर आप अपने जो जैसा हमने एक नोड पैकेज बनाइए, एक नया सा पैकेज बनाने के बाद नोड बनाइए, वहाँ पे कोड को पेस्ट करिए, बिल्ड करिए, बिल्ड करने के बाद आप उसको रॉस टू रन करके फिर पैकेज का नाम फिर नोड का नाम करके आप उसको रन करके देख सकते हैं कि अलग अलग नोड कैसे काम करते हैं, क्योंकि पहले आप देखेंगे तब आपको पता पड़ेगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा लास्ट मैंने बोला था, पता नहीं अब आप लोगों ने किसी ने गज़ीबो वगैरह इंस्टॉल किया है तो हमारा लास्ट रह रहा है कि गज़ीबो का हम विजुअलाइजेशन देखेंगे। उसके बाद फिर रोबोटिक्स में और रॉस में आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, वो लास्ट में
आपको डॉक्यूमेंटेशन बता दूंगा, आप वो फॉलो कर लीजिएगा। मिनिमम आपको रॉस को कंप्लीट एक्सप्लोर करने में, एक बेसिक समझने में जितना आपको पाइथन में टाइम लगता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आपको इसमें बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी जो हर बार, क्योंकि इसमें एरर बहुत ज़्यादा आते हैं। आपके पास एक कोई प्री बिल्ट कंपाइलर नहीं होता जो एरर को आप दिखा देगा कि हाँ ये एरर है, ठीक है। तो आपको एरर कोई ना कोई आ रहा होता है। अगर आपने एक भी सोर्स नहीं किया होगा तो आप लास्ट में जाके नोड रन कर रहे हो, नोड रन ही नहीं होगा क्योंकि आपका सोर्स नहीं हुआ होगा, ठीक। तो ये दो चार चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप नहीं करेंगे वो, तो फिर आपका पूरा का पूरा बनाया हुआ सेटअप रॉस का बेकार हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। और इसमें कुछ प्रिकॉशंस इतने खास नहीं होते हैं। आपको जो टाइम लगेगा, मैं अभी बोल रहा था, एटलीस्ट इट विल रिक्वायर मिनिमम ऑफ 3 to 4 months कि आप प्रैक्टिस करेंगे, तब ही आपको समझ आएगा कि हकीकत में रॉस काम कैसे करते हैं, ठीक। दूसरा, और किसी ने कुछ एक्सप्लोर किया हो या फिर रॉस देखा हो, क्योंकि यहाँ पे हमारा सेशन 1 घंटा ही रहता है, या फिर 1 घंटा 50 मिनट या जितना भी, पर आप लोगों के पास टाइम होता है तो बेटर कि अगर आप लोगों ने खुद एक्सप्लोर कर लिया हो, अगर आपको डाउट आ रहा हो तो, है कोई ऐसा किसी ने किया एक्सप्लोर, कोई डाउट आ रहा है? एनीवन? सब सैचुरेट हो गए। ताहा, आपने किया एक्सप्लोर? सादिक रटू, हार्दिक, कुछ डाउट आया, ट्राई किया? क्योंकि देखिए मैं वापस से बोलूँगा कि आपको इसे जॉइन करने के लिए है तो फिर नहीं होगा कुछ, क्योंकि इतने से आप एक रॉस डेवलपर तो बन नहीं सकते। हाँ, बस ये हो जाएगा कि आपको कोई रॉस बोल रहा होगा, अभी जितना आपने पढ़ा है उससे आप क्या है कि आपको कोई अगर बोल रहा होगा आपको समझ आ जाएगा, बस उतना ही होगा। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको बस ये पता है कि रॉस क्या होता है, नोड क्या होता है, पैकेजेस क्या होता है, नोड बनाना कैसे है, पैकेज बनाना कैसे है, वो भी आपको पता पड़ गया। पर नोड का एक प्रोग्राम कैसे लिखना है पूरा, अगर आपको कुछ करना है उसके लिए आपको प्रैक्टिस की नीड पड़ेगी, वरना वो आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि बेसिक्स में हम इतना ही सीख सकते हैं इसके अंदर, वरना फिर आपको इसमें काफ़ी टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा खुद से ही, ठीक। ये हो गया। और लेट मी चेक कि मैंने आपको क्या क्या बता दिया, फिर अगर इसमें कुछ रह रहा होगा तो हम आज देखते हैं, फिर हम ये ख़त्म करते हैं। लास्ट स्टेप हम गज़ीबो पे कुछ सिमुलेट करके देखेंगे। आई होप मैंने शायद आपको टर्टल सिम बताया था। तो जो टर्टल सिम होता है वो भी आप उस पर एक एक्टिविटी होती है कि हम टर्टल सिम को भी खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। आपको देखते हैं वो। Finish that. जो हमने फर्स्ट डे पे देखा था, हमें हम्बल के लिए चाहिए कोई नहीं, देखते हैं। देखिए, तो ये यहाँ पे जो है हमें इससे कोई काम नहीं है। अगर हमें टर्टल सिम, पहली बात तो हो सकता है आपके में अपडेट हो, अगर अपडेट नहीं है तो आपको क्या करना है, टर्टल सिम आपके में नहीं है फिर सिंपल आप एक कमांड रन करेंगे यहाँ पे, जो आपने अभी यहाँ से उठाई, apt इंस्टॉल। हमारा जो वर्जन है रॉस का वो फॉक्सी नहीं है, तो हम इसे हटाएंगे, हम यहाँ लिखेंगे हम्बल, ठीक है। आप इसको हिट प्रेस करेंगे, वही सेम पासवर्ड, ठीक है। ऑलरेडी मेरे में इंस्टॉल था, इसलिए यहाँ पे 0 अपग्रेडेड 0 अपडेटेड दिख के आ रहा है। अगर आपके में नहीं है तो आप इसको पहले इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक। इसके बाद
जब हम ये फर्स्ट स्टेप है, शायद ही मुझे याद है मैंने बताया था, अगर आप लोगों ने करा होगा इसके आगे तो आपको अगर इसको रन करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद इसको रन करना है, तो आपको यहाँ पे यही सेम रॉस टू रन जो हमारी मेन कमांड होती है कोई भी चीज को रन करने के लिए। लेकिन तब हमें नहीं पता था कि ये क्या लिखा है, अब हमें पता है कि ये क्या लिखा है। सो लेट्स से, अब मैं यहाँ लिखूंगा, देखिए एक और चीज मैं यहाँ करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ रॉस टू, देखिए अब यहाँ पे रॉस टू नोड लिस्ट जब मैंने किया तब यहाँ पे दिख रहा है टर्टल सिम, यानी कि अभी कौन सा नोड हमारा रन हो रहा है, टर्टल सिम नोड जो है वो रन हो रहा है। ठीक है, और अगर आपको ये देखना है कि कैसे कोड बना है या फिर कैसे हमने टर्टल सिम का कोड बनाया है, तो जब आपने यहाँ पे इंस्टॉल किया था आप सिंपल इसका कोड भी जाके देख सकते हैं। पर अब ये हमें पता पड़ गया कि ये क्या है, एक टर्टल सिम नोड है। और ये नोड को एक्सेस कैसे करते हैं, या फिर ये इसको अगर हमें रन कराना है या अब इसको मूव कराना है तो वो कैसे करते हैं, वो हम कल कंप्लीट कर लेंगे, इस पे भी और गजीबो पे भी। ठीक है, तो ये सब कैसे होता है, ये नोड को हम इंफॉर्मेशन देते हैं। अब ये नोड एक बार रन हो गया तो आप देखिए, अब इस कोड को आप ट्राई करिए कि आपको समझ आ रहा है। ये नोड की आपको तीन इंफॉर्मेशन मिलती है, एक्स, वाई और थीटा। एक्स वाई आपकी ऑब्वियसली हमारे ये कोऑर्डिनेट बताता है कहाँ पे, थीटा बताता है कि हमारा जो टर्टल है वो टर्न कितना हो रखा है। तो यूजिंग दीज थ्री इंफॉर्मेशन हम ये नोड को कंट्रोल करते हैं। जो हमारा टर्टल है वो अब यहाँ पे एक नोड है, हम उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, सिमिलरली आपके पास कोई भी आप नोड बनाने जाएंगे तब आपको ऐसे ही, जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसको ट्रैक करते हैं या फिर हम इसको फॉलो कराएंगे कोई सिमिलर पाथ, तो हमें यहाँ पे तीन ही चीजें रिक्वायर्ड है और कुछ नहीं रिक्वायर्ड। लेट्स अगर मुझे इसको आगे या पीछे मूव करना है तो मैं थीटा को चेंज करूंगा और एक्स वाई को चेंज करूंगा। बट अगर हमें यहाँ पे कोई कैमरा होता है, कुछ और होता है, तो हमारे नोड में वो सारी इंफॉर्मेशन होती। ठीक है, और अभी जो हम देख रहे थे आरक्यूटी करके कुछ तो भी था, जिससे हमें पता पड़ता है कि हमारा जो नोड है वो चल रहा है नहीं, तो वो भी हम देख लेते हैं। हमने देखा था आरक्यूटी अंडरस्कोर ग्राफ। ठीक है, तो आप ये भी सॉरी, तो प्रीवियस आरक्यूटी ग्राफ, देखिए तो दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू अबाउट कि आप एक बार आपने जब आरक्यूटी ग्राफ को देखते हैं तो यहाँ से आपको पता पड़ जाता है कि आपके पीसी पे या फिर इन रियल टाइम कौन से नोड अभी वर्क कर रहे हैं। तो अभी जो हमारा टर्टल सिम नोड था वो वर्क कर रहा है, तो वो यहाँ पे आपको एक ऐसा सर्कल सा बन के दिख रहा है। और अगर आपको देखना है कि कितने सारे नोड हो रहे हैं, वो सारे के सारे कैसे, यहाँ पे अब ये ब्लॉक बड़ा है, ये छोटा होता जाएगा अपने आप, अगर यहाँ पे और सारी चीजें ऐड होते जाएंगे। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक्टिव में भी, तो वो भी तब भी यहाँ पे शो कर रहा है, क्योंकि ये आप चेक कर सकते हैं कोई नोड टॉपिक एक्टिव है, तो ये एक्टिव है इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है। अगर ये एक्टिव नहीं होता तो यहाँ पे वर्क, यहाँ पे नहीं दिख रहा होता। तो ऐसे आप ये देखते हैं कि नोड दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। चलिए फिर आज हम ये इतना ही रखते हैं कि हमने कल हमारा एक लास्ट टास्क रहेगा, होपफुली कल ही हम अपना लास्ट सेशन करेंगे। अगर कुछ चेंज हो तो मैं आपको बोलूँगा, क्योंकि आई विल बी ट्रेवलिंग टू समवेयर। तो ये और हमारा लास्ट बच रहा है गजीबो, वो हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम कंक्लूड करेंगे। ठीक है, बट यार आप लोग एक बार ये ट्राई करके देख लीजिएगा, और अगर आपको कोई एरर आता है तो फिर आप बताइएगा, क्योंकि अगर आप खुद से ट्राई करके नहीं देखेंगे तो रॉस का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो उसको आपको यूट्यूब लेक्चर्स भी नहीं मिलने वाले। ठीक है, चलिए फिर टेक केयर, मिलते हैं।